the previous lecture. So previous lecture of pressure, let's see what we discussed. So there we discussed on what parameters the pressure of a liquid depends, and we explained something about what is the density, how we pronounce the density. Then we calculated the formula, we derived the formula for pressure inside the liquid. Then we discussed the relative density. Then we have to learn the density of water also यहाँ पे, ठीक है? In both the systems, usually the MKS system we use, not the CGS system. Then these relations we need to remember all these. Then we discuss some anomalous behavior of water, and a detailed discussion we'll be discussing in topic heat. How the temperature affects the density of a liquid, that will be discussing in heat. Then we also looked some higher units of pressure. Those were bar, ATM and torr. So these were three bigger units of pressure. फिर we discussed the atmospheric pressure, how much it is, okay? And in atmospheric pressure we did not use the exact value of like how much water will generate this much of pressure. We'll be discussing it today in a question, okay? Then we discuss gauge pressure and the absolute pressure, so including that. Then we discuss the properties of pressure inside a liquid. Properties of pressure inside a liquid. If the liquid is at rest, what it will be. Then if the liquid is moving, then we discussed a question also. If the liquid is moving up or down, then also we discussed how the pressure will vary. And there were few more properties like how pressure applies the force, how the shape of a container affects the pressure. So there is no effect of pressure, instead it affects the force at the bottom. So we discussed that also, ki how much will be the force, whether it will be greater than weight or not. So if for a straight cylindrical container it is same. If the container is more wide, then you will see that the weight is more as compared to this, and if the container is like this, the liquid is less but the force is same. So this much we discussed in the previous part. So today we'll start with the question uh, of atmospheric pressure as a Sir, special point. Yeah. sir, last class I asked you one doubt, so you said to remind in next class. Yeah, what it was. Sir, I asked you that if an object is floating on water, then Yeah, that how that it will today affect the we'll be pressure. discussing it in Archimedes principle. Today we'll be discussing it, no problem. Okay, so Yes, sir. let's see the special point. That special point is related to how much of water height we needed to generate 1 atmospheric pressure. Means what pressure we feel, at what depth we'll feel the 1 atmospheric pressure. Okay, so special point is to calculate what is the height or depth of water generating 1 atmospheric pressure, generating nearly, I'll say nearly 1 atmospheric pressure. ओके और मैं सिंपली जी को 10 यूज कर लूंगा, वैसे जी 10 यूज नहीं करते अगर हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना चाहते हैं 9.8 यूज करेंगे, बट स्टिल वी कैन सॉल्व इट, ठीक है? तो अभी देखिए व्हाट इज द हाइट ऑफ वाटर जनरेटिंग दिस मच ऑफ प्रेशर. तो अभी हमें पता है प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू एच रो जी. डन, क्लियर? Yes, sir. ओके, बट अभी मुझे पता है कि प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर, बट इज द एटमॉस्फेरिक दिस यूनिट 1 एटमॉस्फेयर, ये एमकेएस यूनिट है क्या? नहीं, एटमॉस्फेरिक तो बहुत बड़ा यूनिट है. ओके, तो इसका मतलब क्या सिचुएशन होगी, हमें जो प्रेशर यूज करना होगा वो किस में यूज करना होगा, एमकेएस यूनिट में. तो मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ 1 एटमॉस्फेरिक मतलब कितना पास्कल होता है, 101,325 पास्कल. क्लियर?
तो इसका मतलब हम यहाँ पर प्रेशर कितना यूज करेंगे, यही 101,325 पास्कल इज इक्वल टू एच इंटू, हमें हाइट निकालना है, वाटर का डेंसिटी क्या यूज करेंगे, 1000। 1000। हाँ ओके, फिर जी की वैल्यू यूज कर सकते हैं 10, डन। 9.8 भी यूज कर सकते हैं, अभी 10 बेटर रहेगा जिससे कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। ऑल्दो ये 9.8 लेंगे तो थोड़ा सा होगा, बट अप्रॉक्सीमेटली हम चेक कर रहे हैं क्योंकि नियरली हमें पूछा हुआ है, तो 40 से डिवाइड करना है हमें, तो इसका मतलब कितना आंसर आएगा, 10.1325, डन, मीटर। मतलब आप समझो आपको नियरली 10 मीटर नीचे जाना पड़ेगा तब आपको ये वैल्यू पता चलेगी, क्लियर। Yes, sir. या ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पर पॉइंट समझ सकते हैं। So the G is different at different places. Yeah, for different height it will be different, but not for this much smaller heights, okay. मतलब when we go like for 10 kilometers, then the variation is G is insignificant, okay, but for like few meters it is not much variable, so we should have been using 9.8, but हम जैसा एक नियरली कैलकुलेशन कर रहे हैं, so it's fine। सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि नियरली 10 मीटर से भी ज़्यादा होगी हाइट, आप समझ रहे हो, to measure 1 Yes, meter sir. it will be 10 more than 10 meter, okay। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे एक स्पेशल पॉइंट पूछूं क्या, हाउ मच विल बी हाइट फॉर मर्क्यूरी कॉलम, बताएं, फॉर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर वाटर 10 टाइम्स है तो मर्क्यूरी का क्या होगा, तो मरकरी के लिए सॉल्व कर देंगे, याद आया, P इज इक्वल टू एच रो जी, क्लियर। अच्छा अगर आप देखें सो 101,325 इज इक्वल टू एच इंटू मरकरी का रो कितना होता है, याद है आपको, 13,600. 600, गुड। जी की वैल्यू ऑल दो मतलब 9.8 ले लेनी चाहिए हमें, बट लेट से अभी हम 10 से ही सॉल्व करना चाहते हैं, डन। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो फाइनली जो एच का आंसर आएगा वो आएगा 0.726, क्लियर। Sir. या तो एक बार मतलब 9.10 लिया है तो ये वैल्यू कम हो गई है, एग्जैक्टली 9.8 लेंगे तो फिर कितना होगा, हेलो, तो सिचुएशन क्या होगी या रुद्र, अगर हम 9.8 के अकॉर्डिंग करें टू बी प्रिसाइज, और प्रिसाइज वैल्यू बिकॉज हमें मरकरी कॉलम हम यूजुअली यूज करते हैं, तो मरकरी कॉलम हमारे लिए मतलब बेस्ट रहता है, तो अगर मरकरी कॉलम से सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आती है 760 नियरली, ठीक। और ये बहुत ही फेमस टर्म है, ये हमें याद रखना चाहिए दैट जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है दैट इज इक्वल टू 760, ये मीटर में आया है आंसर, 760 mm ऑफ Hg कॉलम, मरकरी कॉलम। ये कई बार पूछा जाता है बहुत पॉइंट्स में, और हमें ये याद रखना चाहिए क्या, कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 760 mm ऑफ मरकरी कॉलम होगा, मतलब 760 mm आप समझ रहे हो ना, अगर आप हाइट देखो तो लेस देन अ मीटर है, तो इतना पॉसिबल है, आप 10 मीटर का ऐसे कॉलम ऐसा घर पे नहीं बना सकते ना, वाटर कॉलम बहुत बड़ा हो जाएगा, सो व्हाट वी यूज मरकरी कॉलम, Mercury column. हाँ, टू बैलेंस दैट प्रेशर। अच्छा पॉइंट ये है कि ये मरकरी कॉलम काम कैसे करता होगा, अभी आप लोग को लग रहा होगा कि ये हम जो बात कर रहे हैं वो किस तरीके से काम होता है, मतलब वर्क कैसे करता है, तो देखें, अगर मुझे सिंपल
चेक करना है कि मरकरी का कॉलम कैसे काम करता है और उसमें रीडिंग कैसे आती है। तो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट होता है। लेट्स से कंटेनर है, ठीक है, और आपको चेक करना है कि एयर का प्रेशर कितना है। डन। तो लेट्स से यहाँ पर आपने एक लिक्विड रखा और आपको पता है कि यहाँ पर प्रेशर आ रहा होगा, क्या, एयर प्रेशर, प्रेशर एयर। ठीक। सोचो अगर आप इसमें एक ऐसा ऐसा इसमें एक ट्यूब डाल दो जिसके अंदर ये मरकरी फिल हो जाए और उस ट्यूब को उल्टा कर दो, इन्वर्टेड कर दो। तो इन्वर्टेड करोगे तो मरकरी तो नीचे गिर जाएगी ना। आप अगर इन्वर्ट ग्लास ट्यूब इन्वर्ट करोगे तो उसे नीचे गिर जाना चाहिए, बट आप देखोगे कि पूरी मरकरी नीचे नहीं गिरती है, मरकरी किसी हाइट तक यहाँ पर रहती है, पूरी नहीं गिरती है। तो क्या रीजन होता है इसका? रीजन क्या है कि यहाँ पर एयर है क्या? बताओ, यहाँ पर कोई एयर है क्या? No. जब आपने ट्यूब को लिक्विड के अंदर रखा तो पूरी एयर तो खत्म हो गई होगी ना। यहाँ पर जब आपने उल्टा किया तो एयर नहीं है, दिस इज प्योर वैक्यूम, दिस इज नो एयर और इट इज वैक्यूम। तो इसका मतलब क्या है, इसका कोई प्रेशर होगा क्या इस ऊपर की एयर का? नहीं। बट No. आपको पता है कि इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन प्रेशर शुड बी सेम। तो सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ये बी के ऊपर एयर है क्या? नहीं है। बी के ऊपर तो सिर्फ क्या है, ये मर्क्यूरी। मर्क्यूरी है ना, एच हाइट का। तो इसका मतलब ये है कि लॉजिकली हमें पता है कि प्रेशर एट ए मस्ट बी सेम एज प्रेशर एट बी, और बी। राइट, प्रेशर एट बी मस्ट बी सेम एज प्रेशर एट ए। प्रेशर सर एट पर या सर पर फिर मर्क्यूरी का भी प्रेशर लगेगा ना? एग्जैक्टली मरकरी का लगेगा, क्योंकि बी को एयर का प्रेशर लग ही नहीं रहा है हाँ। और ए को एयर का लग रहा है। तो इसका मतलब ए का जो प्रेशर है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पी एटमॉस्फेरिक बोलूंगा मैं। और जो बी को लग रहा है वो एयर तो अंदर बची ही नहीं है, तो उसको किसका लग रहा है? मरकरी का लग रहा है। तो दिस इज द रीजन व्हाई मरकरी इज देयर। मरकरी पूरा क्यों नहीं गिर जाती है? रीजन समझ में आया? अगर पूरा गिर जाएगा तो प्रेशर बैलेंस ही नहीं होगा ना ए और बी पे, जबकि हमें पता है ना लिक्विड हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रेशर बैलेंस होना ही चाहिए। सो दैट्स व्हाई मरकरी पूरा नहीं गिरेगा। तो मरकरी कितना गिरेगा? पी हो जाएगा प्रेशर ऑफ मरकरी। So then the atmospheric pressure will be same as pressure of mercury. Yeah, exactly. That's how we calculate how much is the atmospheric pressure at some place. Clear? So ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने ऐसे चेक किया और ये एच रो जी, इससे हमें पता चल जाता है व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट एनी प्लेस। सो दैट्स हाउ वी कैलकुलेट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ एनी प्लेस। इसे सोचो माउंट एवरेस्ट पे लेके चले गए, ठीक, तो वहां पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उतना हाइट तक तो मरकरी राइज करेगा ना। क्लियर? प्रेशर ऑफ मरकरी वी कैन कैलकुलेट सिंपली, कैसे? एच रो जी, सिंपल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो जो स्टैंडर्ड होता है मतलब अर्थ सरफेस के लिए, ये हाइट कितनी आती है एट अर्थ सरफेस? एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, मतलब मैक्स है 760 760 mm हाइट पे आता है। और अगर मैं माउंट एवरेस्ट ले जाऊंगा, ऊपर लेके जाऊंगा, तो सिचुएशन क्या होने लग जाएगी? हाइट कम होने लग जाएगी एयर की भी, तो एयर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। कम होगा। तो इसका मतलब मरकरी भी हाइट कम राइज करेगा। डन? यस। ओके। तो इस तरीके से ये जो सेटअप है इससे हम प्रेशर यूज करने में हम काम कर सकते हैं। तो इस टाइप के सेटअप को क्या बोलते हैं? ये जो हमने यहाँ पर बनाया हुआ है बैरोमीटर, ठीक है, ये क्या है? बेसिकली बैरोमीटर। अच्छा, एक और इंस्ट्रूमेंट होता है प्रेशर मेजर करने के लिए, ये है हमारा बैरोमीटर। एक और सेटअप होता है विच इज कॉल्ड मैनोमीटर। बैरोमीटर किस लिए काम आता है? इट इज यूज्ड टू मेजर प्रेशर, यूजुअली एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ज़्यादा काम आता है। सो बैरोमीटर किस काम में आता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज्ड टू मेजर द प्रेशर।
ओके, फिर एक होता है कि यार अभी ये तो एटमॉस्फेरिक के लिए, इसमें कोई टेंशन नहीं है। एक और सेटअप हम बना लेते हैं जिसे हम बोलते हैं मैनोमीटर। ऐसे काफी सारे सेटअप होते हैं। एक होता है मैनोमीटर। मैनोमीटर किस काम में आता है? मैनोमीटर यूजुअली अदर गैसेस और अदर लिक्विड्स के लिए काम आता है, मेजर करने के लिए। क्या होता है मैनोमीटर, कैसा होता है देखें। मैनोमीटर में एक ऐसी ट्यूब होती है, ठीक, एक ऐसा यू शेप का ट्यूब होता है, थोड़ा गड़बड़ है, यू शेप का ऐसा ट्यूब होता है और उसमें ऑलरेडी मरकरी फिल होता है। तो इसमें क्या होता है, मरकरी ऐसे फिल होता है, ये हुआ Hg, मरकरी फिल होता है। अब देखो कि सपोज यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे कुछ भी आप डाल सकते हो जिस लिक्विड का आपको प्रेशर चाहिए। तो यूजुअली लिक्विड का प्रेशर नहीं, किसी गैस या किसी भी चीज़ का आपको प्रेशर चाहिए, तो इस सेटअप को हम वहाँ पर लगा देते हैं। तो इस सेटअप को हम किस तरीके से लगा देते हैं, उस ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट कर देते हैं जिसका हमें प्रेशर चाहिए। ठीक, तो लेट्स से हमने यहाँ पर कुछ भी कनेक्ट कर दिया है जिस चीज़ का हमें प्रेशर चाहिए। मान लीजिए गैस है यहाँ पर, ठीक है, लेट्स से यहाँ पर क्या है, गैस है। तो गैस इसमें प्रेशर अप्लाई करेगी। यस अभी यस प्रेशर सर। बैलेंस था तो ये स्ट्रेट था, कोई टेंशन नहीं थी, मरकरी ऐसे था। ठीक, यहाँ पर बीच में लगी होती है स्केल एक, यहाँ पर एक होती है स्केल। ये हो गई स्केल। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये प्रेशर लगाएगी, मरकरी इधर क्या करेगा, राइज करना स्टार्ट कर देगा ना, क्लियर, और ये सेक्शन थोड़ा सा पुश कर देगा। हाँ डन। तो इसका मतलब यू विल सी कि देयर इज अ डिफरेंस इन द प्रीवियस वन एंड दिस वन। जबकि हमें पता है कि प्रेशर तो यार सेम होना चाहिए किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो यहाँ पर प्रेशर कौन लगा रहा है, गैस। यहाँ पर प्रेशर कौन लगा रहा है, गैस। क्लियर, ये लगा रहा है गैस, ये हुआ गैस का प्रेशर। और इस वाले पॉइंट पे कौन लगा रहा है प्रेशर, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी लगा रहा है। तो समझ आ गया ना, गैस का पेपर हम स्केल में चेक करके बता सकते हैं। ऐसे देख लेंगे स्केल में कितना हाइट है और बता देंगे। तो यहाँ पर लगा रहा है गैस और यहाँ पर लगा रहा है मरकरी। तो अगर हमें प्रेशर ऑफ गैस चाहिए तो वो क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ एक्स्ट्रा मरकरी। वो जो एक्स्ट्रा मरकरी राइज हुआ है, तो पी गैस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा H रो G। समझ सर आए। आप इसका इमेज दिखा सकते हैं क्या, क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट है कि ये जो गैस जहाँ जाता है वहाँ वैक्यूम रहता है या कैसा रहता है। ठीक है, एक सेकंड रुके। इसमें वैसा कुछ उतना पॉइंट नहीं है, गैस मतलब वैक्यूम नहीं रहता है, ये सेक्शन रहता है जिसमें हम गैस का पाइप लगा सकते हैं, वाटर का पाइप लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। मतलब समझ रहे हो, ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, इस ट्यूब को जाके ऐसे फिट कर देते हैं किसी भी चीज में। समझ रहे हो, ये मैंने गैस के साथ फिक्स है कर दिया है। एक सेकंड होल्ड ओके। करें सर। ओके, ये इमेज दिख रहा है सबको जो मैंने यहाँ पर ऐड किया। यस। यस सर। हाँ, बस ऐसे ही सिंपल है। यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है एक्चुअली, ये ग्लास पाइप है और इसमें आपको दिख नहीं रहा। मरकरी का कलर भी ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है, ग्रे टाइप का। तो ये आपको थोड़ा सा दिख नहीं रहा, बट यहाँ पर ये फिल है। ठीक, ये एक ब्लैक कलर का डॉट लगा है। सो यू कैन सी कि अभी ये तो बहुत नीचे आ गया, स्केल से भी नीचे आ गया, और एक ये दूसरा है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितनी हाइट तक एक्स्ट्रा आ गया है वो।
समझ आया? यस ये सर। और ये कनेक्शन होता है, इसे किसी भी गैस वाटर कहीं पे भी फिक्स कर सकते हैं जहाँ का हमें प्रेशर चाहिए। तो बेसिकली ये लैब में यूज करते हैं, ये लेबोरेटरी वाला पॉइंट है, आप कहीं पे ले जाके कनेक्ट कर सकते हो। क्लियर है सबको कैसे यूज करते हैं मैनोमीटर? सर हाँ यस सर या सर बीपी चेक करने वाले मशीन में वो पंपिंग का क्या रहता है? किस में? बीपी चेक, ब्लड प्रेशर चेक करने वाले मशीन में। ओके ओके, वो तो एयर के अकॉर्डिंग हार्ट रेट चेक करता है, मतलब ब्लड प्रेशर का वो तो वेन्स पे अलग से एयर प्रेशर डाल के, ठीक है, उसका हार्ट रेट मतलब वो उसका बीपिंग रेट ऑब्जर्व करता है। उसमें ऐसा कुछ डायरेक्ट नहीं होता कि आपको वेन्स से कनेक्ट कर दिया। ये सारे कैसे मेथड है? एग्जैक्ट मेथड्स हैं, ये प्रिसाइज मेथड है, क्योंकि इन पे हम डायरेक्टली उस लिक्विड से कनेक्ट हो जा रहे हैं। वहां पर हम वाटर के साथ कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, ब्लड के साथ कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। वेन्स में ब्लड रहता है, हम उसके ऊपर से रैप करके एयर प्रेशर डालते हैं, और उसका जो रिस्पॉन्स आता है वो मशीन ऑब्जर्व करती है और प्री डिफाइंड डेटा के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करती है कि कितना प्रेशर रहेगा। ठीक है, तो ओके मतलब सर, ये थैंक किस यू। टाइप की सिचुएशन है मैं एग्जैक्ट बता देता हूँ। सपोज इसका कुछ प्रेशर है, अंदर एक लिक्विड है, उसका कुछ प्रेशर है, ठीक है। तो अगर आप उसमें कुछ प्रेशर डालोगे अपना, तो ये इसको कंप्रेस करेगा, ये इसको कंप्रेस करना स्टार्ट करेगा। कब तक कंप्रेस नहीं करेगा? जब तक कि दोनों में एकदम मैच नहीं हो जाते। सपोज अंदर 100 है और आपने 80 डाला, कंप्रेस कर पाएगा क्या? यस सर। नहीं। तो हम क्या करते हैं, 150 डाल देते हैं, 150 डाल दिया, तेजी तेजी से एयर पंप कर दिया। अब 150 तो ज़्यादा हो गया, अब हम ड्रॉप करेंगे। तो जैसे ही ये ड्रॉप होगा 140 130, जैसे ही 100 के पास आएगा, एक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी आपको, मतलब ये रुकेगा थोड़ा सा। और वो रुकने के जर्क से पता चल जाता है कि ओके 100 इनसाइड भी है, 100 आउटसाइड भी है, जो मतलब हम एक्स्ट्रा डाल रहे हैं। ठीक है। हम्म। तो ये सर एक पर फिर एयर थोड़ी कंप्रेसिबल रहती है, तो फिर जरा इनएक्यूरेसी हो थोड़ा सकती है। एरर रहता है, वो पॉइंट नहीं है उसका, उतना फर्क नहीं पड़ता है, बहुत ही माइनर सा इफेक्ट आता है। ठीक है, तो इसलिए वो प्रिसाइज नहीं बोल सकते हैं, वो एक नियरेस्ट अमाउंट होता है, उसमें +-5 तक की एरर चलती है। मतलब अगर आपका बीपी 140 है, सो यू कैन कंसिडर इट 130 इवन। चले, तो हमने अभी दोनों इंस्ट्रूमेंट डिस्कस किए और कुछ स्पेशल पॉइंट्स भी डिस्कस किए थे। आज हमें नेक्स्ट स्टार्ट करना है, कुछ इंपॉर्टेंट लॉज हमने बोले थे, जैसे लिक्विड से रिलेटेड बहुत अच्छे कंट्रीब्यूशंस हैं कुछ, तो वो हमें पहले डिस्कस कर लेते हैं। पहला है पास्कल्स लॉ। सो पास्कल्स लॉ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है प्रेशर का यूनिट क्या होता है, पास्कल। इन्हीं साइंटिस्ट के नेम पर ही है पास्कल्स लॉ। देखिए पास्कल लॉ क्या है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल है। देखिए, सपोज हम एक ऐसा बल्ब ले लेते हैं, एक लेट्स से एक सर्कुलर कुछ ऑब्जेक्ट, कुछ कोई सा भी ले सकते हैं, और उसमें एक सेटअप बना देते हैं, एक मूवेबल ऐसा वेट रख देते हैं, एक प्लेट टाइप पे जो मूव हो सकती है, उस प्लेट को हम बोलते हैं पिस्टन। यहाँ पर एक हैंडल लगा दिया, तो ये मूवेबल है, इसको हमने बोला पिस्टन, ये मूव कर सकता है। और लेट्स से इसके अंदर एक लिक्विड है, एक लिक्विड फिल है। अच्छा, तो थोड़े से चांसेस ये हैं कि जब आप प्रेशर डालोगे तो हो सकता है कि लिक्विड कंप्रेस हो जाए, बट यूजुअली लिक्विड कंप्रेस होते हैं क्या? ज़्यादा नहीं सर, नहीं होते। तो हमने चेक उनके करने की, इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेसिस बहुत छोटे रहते हैं। हाँ, तो यहाँ पर हमने कुछ होल्स बना दिए, यहाँ पर कुछ रैंडम होल्स यहाँ पर रख दिए। तो ये जो ब्लैक स्पॉट है ये होल्स हैं, स्मॉल होल्स। तो अभी सिचुएशन ये है कि कब हम डिस्कस करेंगे पास्कल्स लॉ, अगर ये लिक्विड कंप्रेस हो गया तो प्रॉब्लम है, तब तो काफ़ी प्रॉब्लम, तो फिर कुछ लॉ बनेगा ही नहीं। तो इसलिए हम हमेशा पास्कल लॉ जब भी स्टेटमेंट लिखेंगे तो हम लिखेंगे इन कन्फाइंड, कन्फाइंड मतलब किसी एक फिक्स्ड प्लेस पे है, इन कन्फाइंड एंड इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। ठीक है, तो जब भी हम पास्कल लॉ डिस्कस करेंगे तो हम बताएंगे कि वो इनकन्फाइंड
जो है वो सॉरी कन्फाइंड और इनकम्प्रेसिबल लिक्विड पे है। ठीक है, तो इस पे क्या सिचुएशन है, पास्कल लॉ क्या है वो मैं एग्जैक्टली अभी बताता हूँ। सोचो इस पिस्टन को अगर हमने कंप्रेस करने का ट्राई किया तो हम क्या अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। तो लेट्स से मैंने यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई किया, फोर्स। तो पास्कल ने ये बताया कि जब हम कभी लिक्विड पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स ट्रैवल नहीं करता है। यहाँ पे जो ट्रैवल होने वाला है, आपको लगेगा कि हमने फोर्स अप्लाई किया तो फोर्स ट्रैवल करता है, नहीं, फोर्स नहीं ट्रैवल करता। पास्कल ने बताया क्या चीज ट्रैवल करती है, प्रेशर। ठीक, अच्छा, दूसरी अच्छी बात ये बताई कि अगर मैंने लेट्स से 20 पास्कल का प्रेशर चेंज किया तो ये जो 20 का चेंज होने वाला है, लेट्स से यहाँ पे 6 स्टूडेंट्स हैं, मतलब 6 होल्स हैं, तो लेट्स से मैंने 60 का चेंज किया तो सबको कितना कितना फील होगा, क्लियर। लेट्स से मैंने यहाँ पर एक फोर्स लगाया और मैंने इस सिस्टम का प्रेशर चेंज कर दिया 60 अमाउंट, और मैंने यहाँ पे 10 होल्स कर दिए, तो सबको कितना कितना फील होगा, 10-10। ये ओके है सबको, ये एक बेसिक फीलिंग है, जनरल फीलिंग है Yes, कि sir. या यस बट इन एक्चुअल 10-10 फील नहीं होगा। उसने यही बताया कि सबको सेम अमाउंट फील होगा, 60। सर ऐसे कैसे? एग्जैक्टली यही मैं समझाना चाहता हूँ कि ऐसा कैसे हुआ, ये देखते हैं, ये हम चेक करते हैं। उसने ये बताया कि जब भी प्रेशर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आप देखेंगे कि ये जो लिक्विड है यहाँ से निकलने वाला है वो सब तरफ से सिमिलर निकलेगा। आप एक एक वाटर बलून ले लो और उसको उसमें 2-3 होल्स करके लिक्विड फिल करो, यू विल सी कि वो लिक्विड हर तरफ से बिल्कुल सिमिलर वे पे निकल रहा है बाहर। हाँ, थोड़ा सा माइनर सा इफेक्ट यहाँ एक्स्ट्रा होगा क्योंकि यहाँ पहले से ही हाइट ज़्यादा है, तो थोड़ा सा प्रेशर तो इसका एक्स्ट्रा है। बट जब आप उसे कंप्रेस करोगे, स्क्वीज करने का ट्राई करोगे, तो हर तरफ से सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर निकलेगा। तो पास्कल ने बताया ये चीज़ कि जब कभी हम 10 का प्रेशर चेंज करते हैं तो लिक्विड में प्रेशर चेंज हो रहा है ना। अच्छा, लिक्विड कंप्रेस तो होगा नहीं, तो आपको याद है मैंने बताया था कि लिक्विड सारे सरफेस पे फोर्स लगाता है। जब उसे फोर्स फील हुआ तो उसने उसे कन्वर्ट किया प्रेशर में, और प्रेशर ने सारी वॉल पे सिमिलर प्रेशर अप्लाई कर दिया, इसलिए सारे वॉल को सेम प्रेशर फील होता है। क्योंकि लिक्विड में प्रेशर चेंज नहीं हो सकता ना, जितना आप चेंज करेंगे उतना ही प्रेशर थ्रू आउट चेंज होने वाला है। यस ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर स्टेटमेंट बन जाता है इसके लिए, पास्कल्स लॉ के लिए, क्लियर। सो Sir, but without applying force, the water will. नहीं, दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी एंड इट्स नॉर्मल प्रेशर, जो ऑलरेडी उसके पास प्रेशर है उसकी वजह से निकल रहा है। विदाउट अप्लाइंग द फोर्स द लिक्विड इज कमिंग आउट बिकॉज ऑफ इट्स ओन प्रेशर। मैंने बताया कि वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा नीचे, सो यू विल सी कि नीचे जो होगा, यहाँ पर मैं ये चीज़ बना देता हूँ कि अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो यू विल सी कि ड्यू टू इट्स ओन प्रेशर, अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो वो लिक्विड यहाँ पर आएगा, लेट्स से यहाँ पर जा रहा है, ज़्यादा प्रेशर है, यहाँ पर करूँगा कम प्रेशर है, यहीं पे गिर जाएगा। समझ आया, ये सिचुएशन होगी ड्यू टू सेल्फ प्रेशर। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं पॉइंट दे दूँ, ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो देखो प्रेशर एट ए इज लेस देन प्रेशर एट बी। ठीक है, ये तो सेल्फ का पॉइंट है। मैं चेंज की बात कर रहा हूँ कि इन अ कन्फाइंड एंड इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, और हम अगर प्रेशर चेंज करेंगे सो इट विल ट्रांसमिट थ्रू आउट द लिक्विड। सो लेट्स राइट द एक्चुअल स्टेटमेंट, और वो आपको याद रखना है। सो इन अ कन्फाइंड एंड इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, when there is change in pressure, when there is change in pressure caused, it will transmit throughout the liquid. Okay,
So you have muted yourself. Yeah. So the same change will occur everywhere. So ये पॉइंट है, इसलिए हम ये देख सकते हैं कि इसका यूज क्या है, पास्कल्स लॉ का यूज क्या है। फीलिंग क्या है कि अगर आपने कुछ भी प्रेशर एक्स्ट्रा लगाया तो वो थ्रू आउट द लिक्विड में सेम अमाउंट पे जाएगा। सिर्फ फीलिंग ये है मेरे कहने की कि अगर यहाँ पे आपने कुछ 60 या लेट्स से 50 का फोर्स लगाया तो सब पे एक्स्ट्रा प्रेशर कितना फील होने वाला है, 50। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि लेट्स से मैंने यहाँ पर कुछ लगाया फोर्स, लेट्स से मैंने यहाँ पर लगाया क्या, 50 का फोर्स लगाया, F इज इक्वल टू 50। तो यहाँ पर सब जगह पर 50 का फोर्स लगेगा क्या, F इज इक्वल टू 50 लगेगा क्या? यस। नो नो नो, दैट इज रॉन्ग। क्या No. बताया पास्कल ने, क्या चीज ट्रांसमिट होती है? प्रेशर। तो प्रेशर प्रेशर ट्रांसमिट 50 होती का है। लगेगा। प्रेशर, अगर मैंने प्रेशर लगाया कुछ, लेट्स से अगर मैंने कुछ ऐसा क्वेश्चन बनाया कि लेट्स से ये सिचुएशन है और मैं यहाँ पर एक फोर्स लगा रहा हूँ 50 का, बट लेट्स से बिकॉज ऑफ दैट फोर्स, प्रेशर पता है ना, P इज इक्वल टू F अपॉन ए। सो बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, लेट्स से जो प्रेशर जनरेट होने वाला है, दैट जनरेटेड प्रेशर, ओके, P जो है वो है लेट्स से 20। तो इसका मतलब यहाँ पे फोर्स कुछ भी लगे हमें नहीं पता, बट यहाँ पर सब जगह पर प्रेशर कितना लगेगा, 20। क्लियर? तो क्या बताया पास्कल ने, ट्रांसमिट क्या चीज होती है, प्रेशर। फोर्स नहीं ट्रांसमिट होगा, क्या ट्रांसमिट होगा, प्रेशर। क्लियर? सर 20 कैसा पता चला हमें? नहीं, मैंने एक जस्ट वैल्यू ली है फीलिंग के ओके लिए, ठीक है, जस्ट अ वैल्यू, ओके। ठीक है, जस्ट अ वैल्यू। सो बिकॉज प्रेशर ट्रांसमिटेड इज ट्रांसमिटेड थ्रू आउट। क्लियर? जस्ट एक वैल्यू ली है। अभी मैं इसका एग्जांपल एक देख लेता हूँ। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल होता है, पास्कल्स लॉ पे बेस्ड है, दैट इज हाइड्रोलिक जैक। Sir, I have another question. या If there is a L-shaped tube and we apply pressure from one side, या then will the other side also get the same amount of pressure? या द अदर साइड विल गेट द सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर। So the pressure will like transmit through the L-shaped bend. या Okay. सो लेट्स से हाइड्रोलिक जैक कैसा होता है, लेट मी जस्ट गेट अ पिक्चर। हाँ, सो हाइड्रोलिक जैक, ओके, सो हाइड्रोलिक जैक इज बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ। देखें कैसा सेटअप होता है, इस पे देखें। सपोज ये हमारा, ये जो पॉइंट आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारा है इनपुट, ओरिजिनल फोर्स, मतलब ये है हमारा इनपुट, और हमें वो फोर्स लगा के क्या उठाना है, कार को ऊपर की तरफ लेके जाना है। तो ये हमारा क्या बन गया, आउटपुट। क्लियर? तो ये हम अप्लाई कर रहे हैं इनपुट, और हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है, यहाँ पे फोर्स मिल रहा है। अब हमें लेट से कार को पिक करना है, कार को ऊपर रेज करना है। तो हाइड्रोलिक जैक बिल्कुल पास्कल लॉ पे बेस्ड है। क्या, हमने एक फोर्स लगाया और हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या है प्रेशर का, सिंपल, प्रेशर से अगर हमें फोर्स चाहिए तो P इज इक्वल टू होता है F अपॉन एरिया। क्लियर? क्या होता है F अपॉन एरिया, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। और पास्कल ने बताया कि प्रेशर ट्रांसमिटेड इज सेम थ्रू आउट, प्रेशर इज सेम थ्रू आउट। तो इसका मतलब ये है कि प्रेशर तो कैंसिल आउट हो जाने वाला है, क्या चीज यूज होने वाली है, एरिया। तो यहां से मैं बोलूंगा क्या, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, क्या है पास्कल्स लॉ, इफ वी अप्लाई F1 फोर्स, तो F1 फोर्स का कुछ यूज नहीं है, फोर्स पहले क्या कॉज करेगा, प्रेशर। सो इफ यू अप्लाई F1 फोर्स एंड it causes P1 pressure, and it causes P1 pressure, then
क्या सिचुएशन होगी, दिस प्रेशर विल ट्रेवल थ्रू आउट। तो यहां से लेट से प्रेशर कितना आया, P1 आया, तो ये P1 पूरे लिक्विड में क्या रहेगा, सेम रहेगा। समझ आया? सो इसका मतलब इस वाले को भी ऊपर कितना प्रेशर फील होगा, P1. प्रेशर फील होगा। तो यहाँ पर देखो P2 टर्म लिख दिया है, बट आई गारंटी कि P1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, P2. ठीक। तो इसका मतलब सेम प्रेशर यहाँ पर भी हमें मिलेगा। तो इसका मतलब देखें, इनपुट प्रेशर इज इक्वल टू आउटपुट प्रेशर, ये होना चाहिए। डन। तो इनपुट में प्रेशर क्या होगा, F1 अपॉन A1, और आउटपुट में प्रेशर क्या होगा, F2 अपॉन A2। तो अगर मुझे आउटपुट का फोर्स चाहिए कि आउटपुट में कितना फोर्स मिलेगा, तो वो कितना हो जाएगा, A2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, सो इट विल बिकम A2 बाई A1 टाइम्स ऑफ F1। इसका मतलब अगर मैंने F2 वाला एरिया डबल कर दिया, तो मेरा फोर्स भी कितने टाइम्स फील होगा मुझे, डबल। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने कितने टाइम्स कर दिया है एरिया, 10 टाइम्स। तो इसका मतलब इसका फोर्स भी कितना हो जाएगा, 10 टाइम्स। समझ आया? यस सर। तो इस तरीके से हाइड्रोलिक जैक्स काम करते हैं कि बड़े बड़े कार को बहुत ही सिंपल, आप देखोगे कि ऐसा मैकेनिकल सिस्टम रहेगा, वहां पे जाके वो लोग अपने पैर से, सिंपल पैर से एक 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे और कार को कितना फील हो जाएगा, 100 न्यूटन का फोर्स। अब पॉइंट आती है कि ये थोड़ा अनरियलिस्टिक लग रहा है, मतलब ऐसे तो फिर बहुत अच्छी चीज हो गई ना, ये तो बहुत अच्छी तो है, बट ओवर द टाइम ये लिक्विड हम बोलते तो हैं कि इनकम्प्रेसिबल है, बट थोड़े टाइम बाद क्या हो जाने लगता है, ये लिक्विड बहुत बार यूज करते करते कंप्रेस होने लग जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि हाइड्रोलिक जैक और जो ब्रेकिंग सिस्टम होते हैं कार के, वो लिक्विड यूज करते हैं। ब्रेकिंग ऑयल आपने सुना होगा, वो क्या होता है, ब्रेकिंग ऑयल इनकम्प्रेसिबल लिक्विड होता है, बट धीरे धीरे बहुत टाइम यूज करने के बाद वो भी कंप्रेस होने लगता है, इसलिए हमें उसे चेंज करना पड़ता है। सर तो वो, एक्चुअली बहुत टाइम के बाद क्या होता है, थोड़ी सी एयर भी आने लगती है अंदर। हाँ मतलब बहुत सारी चीजें हैं उसमें, मैंने सिर्फ एक पैरामीटर प्रेशर वाला यूज किया हुआ है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, हम सिर्फ एक एलिमेंट देख रहे हैं कि कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉब्लम आ जाएगी, तो वो चीज़ हम कंसिडर करेंगे वहां पर। तो पास्कल लॉ सबको क्लियर है? पास्कल यस लॉ सर। क्या है कि हम कभी फोर्स लगाएंगे, वो फोर्स कन्वर्ट होगा किसमें, प्रेशर में, और वो जो चेंज इन प्रेशर है वो पूरे लिक्विड में हर जगह सेम रहेगा। अब ये प्रेशर जितना भी फोर्स कॉज कर सकता है ये कर देगा कॉज। ओके। यस हम्म। सर। So why does the liquid have this problem of losing This liquid, like it depends upon the material. Suppose some material is there, उनका molecular structure है, आप उन्हें compress करो, थोड़े टाइम पे compress होंगे, वापस regain कर लेंगे, but if you keep on doing this, अल्टीमेटली वो थोड़ा सा परमानेंटली कंप्रेस हो जाएंगे, स्क्वीज हो जाएंगे। तो ये मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है, उनके मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज है, Okay. बहुत बार आप रिपीटेटिव करोगे तो वो कंप्रेस हो जाएंगे। नॉन आइडियल सिचुएशन है, मतलब जनरल सिचुएशन कह सकते हैं उसे। ठीक है, तो पास्कल लॉ क्लियर है यार, पास्कल लॉ में किसी को डाउट नहीं है ना? ओके गुड। नेक्स्ट वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, देखें हम, दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके, आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखें। अभी आर्किमिडीज प्रिंसिपल पहले थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं चीजों को कि काम क्या है, क्योंकि आर्किमिडीज प्रिंसिपल में बहुत सारी बातें आर्किमिडीज ने हमें बताई। तो हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस चीज को देख लेते हैं। ओके देखिए, तो ये इस फिगर के थ्रू थोड़ा सा हम समझते हैं कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल किस चीज पर बेस्ड है। देखिए, तो सपोज हमारे पास दो सिचुएशन है, सिचुएशन नंबर ए, सिचुएशन नंबर बी। सिचुएशन नंबर ए मतलब हमारे पास एक बॉक्स है जिसका वेट कितना है, 20 न्यूटन। डन। अच्छा, अब हमारे पास एक लिक्विड का कंटेनर था, हमारे पास यहाँ पर एक लिक्विड का कंटेनर है।
ये उस पर बिल्कुल भी डिप नहीं है, जस्ट टच कर रहा है। ओके, ये कंटेनर है हमारे पास, ये अभी लिक्विड उसमें जस्ट टच कर रहा है, एकदम जस्ट टच कर रहा है। और उसका वेट कितना है? उसका वेट है 20 न्यूटन। अभी सिचुएशन क्या होगी अगर मैंने इसे कुछ डिप कर दिया? ये सिचुएशन क्या है? पार्शियली इमर्स्ड बोलते हैं इसे। ये कंप्लीटली इमर्स्ड नहीं है, क्या है? पार्शियली इमर्स्ड है। ये सिचुएशन हो गई। तो इससे हुआ क्या कि जैसे ही मैंने इस ऑब्जेक्ट को अंदर रखा, ये लिक्विड ऊपर आने लगेगा और ये लिक्विड यहाँ से सर बाहर कलेक्ट हो जाएगा। सर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वो लिक्विड को ज्यादा जगह बचती नहीं है इसलिए हाँ, वो बाहर। वही लिक्विड के पास कुछ प्लेस बचा नहीं ना, हमने लिक्विड के प्लेस पे वो ऑब्जेक्ट रख दिया, तो लिक्विड बाहर की तरफ आने लगेगा। तो लिक्विड बाहर की तरफ आएगा तो हमने उस वाटर को अलग से रख लिया और उसका नेम क्या दिया? वाटर डिस्प्लेस्ड। क्या नेम हुआ? वाटर डिस्प्लेस, कि इस लिक्विड ने यहाँ का वाटर डिस्प्लेस कर लिया। तो अब अगर मैं आपको कॉमन सेंस बताऊं तो कॉमन सेंस आपका ये नहीं कहता कि ये जो यहाँ पर ये जो वॉल्यूम दिख रहा है, आपको नहीं लगता कि ये लिक्विड भी उतना ही वॉल्यूम बाहर आएगा? आपको ये समझ आया? ये हुआ वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड। ठीक है, पॉइंट समझ? एक्चुअली दिस इज लाइक उतना ही बाहर आ जाएगा क्योंकि हम ये मेथड इरेगुलर सरफेस के ऑब्जेक्ट्स की एरिया मेजर करने में भी यूज करते हैं। हाँ एग्जैक्टली, वो तो बाद का कंसिक्वेंसेस है, वो तो उसका यूज है। ठीक है, वो तो ठीक है, वो तो उसका यूज है। हम वही बताना चाह रहे हैं कि पहले जब कोई मेथड नहीं थे, जब आर्किमिडीज ने ये बात बताई, ये प्रिंसिपल दिया हमें, तो हम वो क्या बात बोली वो देखेंगे हम। तो पहला तो हमें कॉमन सेंस पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड जितना होगा, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस भी तो उतना ही होगा। एवरीवन एग्रीज विद दिस? वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड क्लियर है या नहीं, ये बताइए। यस सर। ओके, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, सेम चीज यहाँ पर होगा। हमने उसे पूरा इमर्स्ड कर दिया, फुल्ली इमर्स्ड कर दिया, तो कितना लिक्विड बाहर आ जाएगा? उसके पूरे वॉल्यूम जितना आ जाएगा। डन? थर्ड केस समझ आया? अच्छा, अब पॉइंट Yes, आते हैं, sir. रीडिंग पे बात करते हैं। यार रीडिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ गई। क्या प्रॉब्लम आ गई? देखिए, रीडिंग में प्रॉब्लम आ गई कि पहले ये 20 न्यूटन का था, अब 14 न्यूटन आ गया। क्लियर? तो इसका मतलब 6 न्यूटन का कहीं तो प्रॉब्लम हो गई। फिर जब हमने इसे पूरा इमर्स किया तो आंसर आ गया 10 न्यूटन, मतलब 4 न्यूटन की कहीं प्रॉब्लम आ गई। तो इस चीज को किसने समझाया? आर्किमिडीज ने। उन्होंने बहुत ही बेसिक वे पे समझाया। मैं भी रीजन बताऊंगा कि क्या रीजन है उसका, बट पहले समझ लेते हैं कि उन्होंने क्या बताया। उन्होंने बताया कि ये जो वेट में लॉस आया है ना, ये इस लिक्विड के वेट के बराबर है। अगर मैं इसे वेइंग मशीन में रख दूं इस लिक्विड को, तो कितना न्यूटन वैल्यू देगा? ये मुझे 6 न्यूटन वैल्यू देगा। समझ आया? पॉइंट समझ आया कि आर्किमिडीज ने क्या बताया? मैं भी कैलकुलेट करके बताऊंगा कि कैसे ये उन्होंने डिसाइड किया, बट पॉइंट समझ आया कि आर्किमिडीज ने क्या बताया? हाँ यस सर, इट मेक्स सेंस बिकॉज Yeah. लिक्विड Yes, इज नॉट sir. एज हेवी एज द ऑब्जेक्ट। एग्जैक्टली, सो दैट इज द पॉइंट। तो अभी वो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, पहले हम देखते हैं सिनेरियो क्या हो रहा है। तो पहले हम देख लेते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है। सो यहाँ पर पहले स्टेटमेंट मैं नहीं लिखूंगा, पहले मैं लिखूंगा when some object is immersed in liquid fully or partially, then there is decrease in its weight, क्लियर? तो ये पक्का सबको समझ में आया कि डिक्रीज होगा वेट, पक्का, क्योंकि कोई भी बॉडी है वो हमें थोड़ी सी लाइट वेटेड फील होती है जब हम लिक्विड के अंदर लेके जाते हैं उसे, तो वो लाइट वेटेड फील होता है, ये मैंने बता दिया।
अब आर्किमिडीज ने बताया कि कितना लाइट वेटेड फील होगा, ये किस बात पर डिपेंड करेगा, वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल बन जाता है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल या सर, इज इट द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड? या बिकॉज ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अभी मैं पूरा रीजन बात करूंगा कि व्हाई इट इज हैपनिंग। पहले हम क्या देख लेते हैं कि लॉ क्या है। क्लियर? यस सर। ओके, सो देख लेते हैं। व्हेन an object is immersed in liquid, the change in its weight, the change in its weight, change in its weight मतलब, or I'll say loss in its weight, loss in its weight is equal to is equals to the weight of liquid displaced. क्लियर? तो ये तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है, ये हमें याद करना पड़ेगा। आप अभी 10 मिनट्स रुकेंगे, पहले मैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपको पूरा कैलकुलेट करके समझा दूंगा, फिर मैं रीजनिंग पे बात करूंगा, ठीक है? तो अभी आपको पहले क्या याद करना है वो क्लियर रखना है। स्टेटमेंट समझ आया? देयर इज लॉस इन इट्स वेट, दैट इज श्योर। ये आपको क्लियर समझ आ गया कि देयर इज अ लॉस इन इट्स वेट, और वो कितना होगा? इक्वल टू द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो पहले मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ, बाद में मैं अलग बात करूंगा। तो पहले देख लेते हैं लॉस इन वेट। लॉस इन वेट, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कितना वेट लॉस होगा उस ऑब्जेक्ट का, कितना वेट चेंज फील होगा। लॉस इन वेट कितना होगा? स्टेटमेंट क्या है? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। क्लियर? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अच्छा, वेट कैसे निकालते हैं? mg से। यस देन सर। ओके, तो वेट ऑफ लिक्विड कैसे निकालेंगे? mg से। ये m क्या है? ये किसका m है? मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। यस। अच्छा, वो कैसे निकालेंगे? मास को अगर मुझे लिक्विड की डेंसिटी पता है तो, याद है यहाँ पर साइड में फॉर्मूला एक, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर Mass वॉल्यूम। upon volume. तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि डेंसिटी जो होता है वो होता है मास ओवर वॉल्यूम। तो इसका मतलब मास को क्या लिख सकते हैं? लिक्विड का डेंसिटी इनटू लिक्विड का वॉल्यूम। किस वॉल्यूम। लिक्विड का? डिस्प्लेस्ड का। सो मैं लिख सकता Volume. हूँ v इंटू रो इंटू जी। एम को मैंने क्या लिखा? v इंटू रो इंटू जी। v क्या है भाई? क्या है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। क्लियर? और ये क्या है? रो क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। क्लियर है कि नहीं? बताइए। चले, ये सबको फॉर्मूला समझ आया? यस सर, we फॉर्मूला अच्छा, rearranged the density formula. Yes, sir. एग्जैक्टली इज सिमिलर टू, वेरी सिमिलर टू डेंसिटी। अभी देखो कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेड और डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेड। अच्छा, कॉमन सेंस ने हमें क्या बताया था कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस किसके जितना दिखेगा? क्योंकि अब आप हर बार ऐसे बीकर लेके मीजर तो करने नहीं लगोगे कि कितना लिक्विड बाहर आया। करोगे क्या ऐसे बीकर लेके? नहीं। नहीं। तो हमें क्या चीज पता चली यहाँ से कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एग्जैक्ट कितना डिस्प्लेस होगा? जितना कि वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड है। ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो यहाँ पर मैं स्टार मार्क लिखूंगा और इस वॉल्यूम को लिख सकता हूँ, इट सो सर, अगर हमें एक ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम दी पता होगी। है कि कितना डिप है, तो हम बता देंगे हाँ कि वेट कितना लॉस होने वाला है। इट इज हाँ। सेम एज वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड।
Okay. Sir, in every equation, G is equal to 10. Yeah, matlab multiple times I have repeated it. Like the true value is 9.8, but I specifically use 10. Okay. If you are solving a question from the book, it will be specified to you in the question what value you need to use. Otherwise, you can use 9.8 also. So Sir, that is, because in all of our like exams वगैरह I used to use 9, 10 only, yeah, and some places it used to also be said that use 10. use 10. Some places it can say 10, or it depends upon the option. You can use 9.8 also. If you are solving the school exams, you can use 9.8. No worries. Or if it is given in the question, like it is given use G is equal to 10, then use 10. Or do you want me to use 9.8 again and again and multiply how the value will come? So I guess I'm not teaching multiplication to you. Yes, That sir. you can do on your own, huh? Sir, you use 10 only. Yeah. So loss in weight. Let's see the final formula for loss in weight, which we need to always remember. So loss in weight is equal to, formula देखें कैसा दिखेगा? It will be V, but V of immersed. This V is what? Immersed into the density of what? Liquid and into G. क्लियर? देखो मैंने ब्रॉड पूरा लिख दिया है जिससे आपको टेंशन नहीं हो. आपको ऐसा बार बार लिखना नहीं है, आपको सिर्फ क्या लिखना होगा? वी रो जी. बट याद रखना है कि ये वी क्या है? ये वी क्या है? इमर्स्ड पार्ट. Immerse. कितना पार्ट इमर्स्ड होगा उसके बेसिस पे काम करेंगे. ठीक है. अच्छा, ये बताओ लिक्विड का ओरिजिनल वेट कैसे निकालेंगे? लेट्स सी द ओरिजिनल वेट ऑफ ऑब्जेक्ट. ओरिजिनल वेट ऑफ ऑब्जेक्ट वो कैसे निकालेंगे भाई? वो तो mg होगा, और ये m किसका है? ऑब्जेक्ट का है ना. तो m को क्या लिखेंगे? v इंटू रो इंटू जी. इस बार v क्या है? टोटल वॉल्यूम होगा ना, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट का क्या निकाल रहे हैं? ओरिजिनल वेट निकाल रहे हैं. Original weight. अच्छा, ये डेंसिटी किसकी होगी? ऑब्जेक्ट की होगी ना. Object. ऑब्जेक्ट की डेंसिटी होगी इंटू जी. तो यहां से हम देख भी सकते हैं कि उस पे जो है ओरिजिनल वेट उसका कितना हो जाएगा, क्योंकि बाद में हमें ऐसा माइनस करके चेक करना पड़ेगा ना कि वेट उसका कितना है, इस टाइप में. डन. तो ओरिजिनल वेट कितना हो जाएगा? लेट्स से, Yes, sir. या सो लेट्स राइट इट w original. So this is w. So w will be v total, but ये रो o होगा. ऑब्जेक्ट के लिए o वर्ड यूज करूंगा, जैसे यहाँ पे लिक्विड के लिए l यूज कर सकते हैं. ठीक है. इंटू जी. तो आप समझ जाएंगे ये चीज. क्लियर? अच्छा, ये v टोटल है. Yes, sir. अभी देखें, दोनों फॉर्मूले तो हमें पता हो गए. क्लियर? बट समटाइम्स क्या होता है कि पार्शियली इमर्स्ड है तो आपको बोल देगा कि बताओ वेट लॉस कितना होगा जब हाफ इमर्स्ड है. डन. बोल देगा 3/4 इमर्स्ड है तो कितना होगा? आप लोग कर लेंगे ना ये चीज? यस सर. तो 3/4 पूरा लेने के बजाय वॉल्यूम अगर 3/4 लेंगे एज हाँ. पर जितना गिवन होगा. तो हम क्या करते हैं कि हम फॉर्मूला बना लेते हैं फुली इमर्स्ड के लिए. पार्शियली के लिए आप सॉल्व कर लेंगे, फुली के लिए हम फॉर्मूला बना लेते हैं, क्योंकि फुली में तो ये वी क्या हो जाएगा? टोटल. तो ये स्पेशल पॉइंट की तरह मैं यहाँ पे लिखूंगा. फिर से देखेंगे, ये स्पेशल पॉइंट होगा क्या? व्हेन फुली इमर्स्ड. व्हेन फुली इमर्स्ड. अच्छा, फुली इमर्स्ड होगा, इसका मतलब वॉल्यूम इमर्स्ड किसके जितना हो जाएगा? वॉल्यूम टोटल के जितना हो जाएगा ना. फुली इमर्स्ड का मतलब ये है. क्लियर? तो बेटा लॉस कितना होगा? W लॉस. वो तो V इमर्स्ड था. अच्छा, दोनों को मान लेते हैं, दोनों क्या है? V है. कुछ दोनों क्या है? V है गिवन. V इमर्स्ड भी V गिवन है, और V टोटल भी V नॉट लिख देते हैं, जिससे थोड़ा सा स्पेसिफिक रहे. तो फॉर्मूला क्या है लॉस का? V इमर्स्ड
इनटू रो किसका, लिक्विड लिक्विड इनटू जी। Liquid. क्लियर? तो बेटा वी Into G. को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी नॉट लिख सकता हूँ, रो लिक्विड को क्या लिख सकता हूँ, एल लिख सकता हूँ ऐसे रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो ये हो गया मेरा डब्ल्यू लॉस का फॉर्मूला अगर फुल्ली इमर्स्ड है, मतलब मैं पूरा वॉल्यूम यूज कर सकता हूँ। अच्छा, डब्ल्यू टोटल वेट क्या है उसका, एक्चुअल वेट कितना होगा, वो तो टोटल भी होता है और ये होता है रो ऑब्जेक्ट इनटू जी। क्लियर? ये तो ये दोनों फॉर्मूले हुए। देखो दोनों फॉर्मूले में कुछ चीजें सेम दिख रही हैं बिल्कुल। क्या चीजें सेम दिख रही हैं? वॉल्यूम। वॉल्यूम, वॉल्यूम। वॉल्यूम और जी सेम दिख रहा है, मतलब मैं इसे फाइनल फार्मूला के फॉर्मेट में देख सकता हूँ। बस मैं थोड़ा सा एक पॉइंट लिखता हूँ, क्या अगर मैं पूछूं न्यू वेट क्या हो जाएगा, न्यू वेट आफ्टर इमर्स्ड, न्यू वेट कितना फील होगा, तो वेट एक्चुअल माइनस वेट लॉस। या दैट वेट, न्यू वेट इज नोन एज apparent वेट। क्लियर? दैट न्यू वेट इज नोन एज apparent, apparent weight. फील होने वाला है वो क्या हो Apparent जाएगा, weight. एक्चुअल माइनस लॉस कितना हुआ। समझ आया? Loss. हाँ तो मुझे लगता है ये आप लोग को Yes, sir. क्लियर है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो ये बहुत ही सिंपल वे पे हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि हमें रेशियो निकालना होता है, पूछ लेता है चीज़ें, तो देखें कैसे कर सकते हैं हम फॉर्मूले। फ्रॉम इक्वेशन वी लॉस, डब्ल्यू लॉस अपॉन डब्ल्यू टोटल एक्चुअल क्या हो जाएगा, Actual. हाँ लॉस के लिए वी नॉट इंटू रो लिक्विड इंटू जी अपॉन वी नॉट इंटू रो ऑब्जेक्ट इंटू जी। क्लियर? तो इसका मतलब लॉस सीधे किस पे डिपेंड करता है, उन दोनों की डेंसिटी पे डिपेंड करता है। समझ आया? yes Yes, sir, so sir. if there is a आपको more समझाना चाह रहा था कि लॉस डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी। sir so if there is like we are submerging the object into honey, then we can say that because honey is denser, uh, so then that is why the W loss will be less. विल बी या एग्जैक्टली। तो मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू, ऑल्दो देयर आर वन मोर स्टेप, लॉस को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये तो इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये तो बिल्कुल आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एक और है लॉस को, अभी जस्ट हमने क्या बताया, लॉस को हम लिख सकते हैं एक्चुअल माइनस एपरेंट। क्लियर? सो इसको क्या Sir, लिख सकते हैं, तो एक्चुअल माइनस लॉस्ट। yes हाँ सॉरी एक्चुअल माइनस लॉस्ट, एक्चुअल माइनस डब्ल्यू एपरेंट। क्लियर? अपॉन क्या है, डब्ल्यू एक्चुअल है। तो मैं नया वाला वेट क्या होगा और पहले वाला वेट क्या होगा, इनका रिलेशन भी तो बना सकता हूँ। क्या करूँ मैं, इन दोनों का डिवाइड कर दूँ। तो ये चीज़ आपको पता है ना, सपोज x प्लस वाई अपॉन जेड करेंगे तो इस z को दोनों में डिवाइड कर सकता हूँ मैं। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देते हैं। अच्छा चलो सिंपल रखते हैं मैथ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें अगर, अच्छा ये चीज जो है लिक्विड ऑफ ओवर ऑब्जेक्ट, अगर ये वाटर होता तो ये एक टाइप से रिलेटिव डेंसिटी टाइप बन जाती ना ऑब्जेक्ट की। तो ये हाँ सर इनडायरेक्टली क्या हुआ, लिखा हुआ है 1 अपॉन रिलेटिव डेंसिटी लिखा हुआ है। मतलब रुके, मैं एक नया फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ यहाँ पर आप लोग के लिए जिससे आपको इजी होगा। मैं अगर ये बोलूँ डब्ल्यू एक्चुअल ओवर डब्ल्यू लॉस, तो किस पे डिपेंड करेगा, डब्ल्यू एक्चुअल मतलब उसके ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पे, और लॉस किस पे डिपेंड करेगा, लिक्विड की डेंसिटी पे। तो ये तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो गई ना। क्लियर है या नहीं? So, but if it is water, then it will become relative then density. it will be become relative density, otherwise we say it specific gravity। हम क्या बोलते हैं उसको, specific gravity, or I can say it is a relative density with respect to that liquid। सिंपल रिलेटिव डेंसिटी मतलब कॉमन सेंस है कि किसके रेस्पेक्ट में है, वाटर के रेस्पेक्ट Water. में।
और अगर नहीं है वाटर तो बोल देगा कि इट्स रिलेटिव डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑयल। अगर हम ऑयल में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वो होगा, अदरवाइज क्या वर्ड यूज करेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी। So sir, we can say like there are two people and Yeah. we are judging the light person's weight. So if the other person is very fat, then the relative density, like the thin person will be very thin, like compared to him. But एग्जैक्टली if वही, the other दैट इज person द is पॉइंट। quite fat, then it won't be like that. सो ये सिचुएशन है, ये पॉइंट है हमारा कि अगर हमें एक्चुअल और लॉस चाहिए तो हमें लिक्विड का ध्यान देना है। लॉस कौन कराता है, लिक्विड का जो डेंसिटी है वो लॉस के इक्वेट होगी और एक्चुअल की जो डेंसिटी होगी वो इसके इक्वेट होगी। तो मैंने भी आपको बताया कि इसको थोड़ा सा हम फॉर्मूले वाइज भी बना सकते हैं। कैसे कि अगर हमें लेट्स से ओरिजिनल न्यू चाहिए तो न्यू वाले को भी मैंने कैसे बताया, इधर फॉर्मूला एक्चुअल को लिखा मैंने ए, लॉस को कैसे लिख सकते हैं, एक्चुअल माइनस न्यू, डन न्यू। Yes. ये हो गया हमारा रो ऑब्जेक्ट अपॉन ये। तो लेट से रो ऑब्जेक्ट को मैंने लिख दिया रिलेटिव डेंसिटी आर डी। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा देता हूँ, देखें क्या बनेगा। ये हो जाएगा डब्ल्यू ए इज इक्वल टू आर डी इंटू डब्ल्यू ए माइनस आर डी इंटू डब्ल्यू एन। क्लियर। अच्छा, डब्ल्यू ए को मैं साथ में लिखने का ट्राई करता हूँ, डब्ल्यू एन को इस तरफ ले जाता हूँ। तो देखें क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा क्या, डब्ल्यू एन इंटू रिलेटिव डेंसिटी, ये मैंने अलग लिख लिया इस तरफ, और इसको माइनस में ले गए तो डब्ल्यू एन मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया और ये क्या गया, सॉरी डब्ल्यू ए कॉमन ले लिया, ये आ गया रिलेटिव डेंसिटी -1। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं फॉर्मूला बनाऊँ तो इस तरीके से डिवाइड का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। न्यू ओवर डब्ल्यू ए क्या करेंगे, रिलेटिव डेंसिटी का डिवाइड दे देंगे। समझ आया। न्यू ओवर इसका ओरिजिनल अगर हमें चाहिए तो रिलेटिव डेंसिटी -1 बाई रिलेटिव डेंसिटी। तो मैं यहाँ पर फाइनली फार्मूला लिखता हूँ, ये सारी कैलकुलेशन इरेज करता हूँ। आप लोग याद रख सकते हैं, अदरवाइज थोड़ी सॉल्विंग आपकी बढ़ जाएगी, उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपरेंट और न्यू, डब्ल्यू अपरेंट इट विल बी ओवर डब्ल्यू एक्चुअल। क्या सिचुएशन होगी, रिलेटिव डेंसिटी -1 ओवर रिलेटिव डेंसिटी, डन। अगर मैं रिलेटिव डेंसिटी को अलग अलग डिवाइड करूँ सो 1 - 1 बाई रिलेटिव डेंसिटी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आज फॉर्मूले बहुत सारे हो गए हैं, फॉर्मूले काफ़ी सारे हैं, तो डरना नहीं है यार ये इतने सारे फॉर्मूले इसको देख के कि क्या सॉल्विंग है, कितना ज़्यादा फॉर्मूले हो गए हैं। ये सिर्फ अलग अलग स्पेसिफिक पॉइंट वही बता रहे हैं सारे फॉर्मूले। ये हो गई रिलेटिव डेंसिटी। अभी जब मैं क्वेश्चंस दूंगा तो आपको तुरंत फॉर्मूले समझ में आने लगेंगे कि क्या ज़्यादा इसमें समझने वाली चीज़ है। सबसे ज़्यादा काम की चीज़ पता है क्या, ये इस पूरे एक ही लाइन से सारा कुछ सॉल्व हो जाता है। क्या कि एक्चुअल वेट बिलोंग करता है ऑब्जेक्ट को और लॉस किसको बिलोंग करता है, लिक्विड को। ये लाइन जिसे याद है मतलब सारा कुछ याद होगा, क्योंकि रिलेटिव वगैरह इट इज जस्ट अ कंपैरिजन, वो आप लोग कर पाओगे। ठीक है। हाँ। अच्छा, अब इन सब के रीजन पे आते हैं कि मैंने बताया था कि मैं अब आगे बताऊंगा आर्किमिडीज के प्रिंसिपल का रीजन क्या है। मतलब बेसिकली ये बोल सकते हैं क्या सर आप वो हाँ, ऊपर का फॉर्मूला दिखाएंगे जरा। ये हाँ यस। चलेगा, इसको बाद में आप नोट कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, मैं नोट सेंड कर दूंगा। मैं पहले बुआयंट फोर्स के बारे में आपको बता देता हूँ। बुआयंट फोर्स, सो बुआयंट फोर्स ये क्या होता है, बेसिकली यही फोर्स है जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल जिसके वजह से वेट कम होता है, इसी की वजह से होता है बुआयंट फोर्स। सो व्हेन वी इमर्स an object in the liquid, when we immerse an object in the liquid, there is a force which acts due to pressure difference upward, and that force is known as F buoyant। और ये फोर्स क्यों लगता है, बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस। तो नीचे क्या लग रहा है, वेट, W वेट,
तो जो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है वो इसी से जस्टिफाइड होता है। लॉस इन वेट क्यों फील होगा? क्यों? क्योंकि अपोज कौन कर रहा है? बुआयंसी। क्यों फील होगा? बिकॉज वेट माइनस कौन अपोज कर रहा है? बुआयंसी अपोज कर रहा है। और बुआयंसी का फॉर्मूला क्या होता है? कितना वो बुआयंसी लगेगा ये डिपेंड करता है लिक्विड पे। सो एफ बुआयंट होता है वी रो लिक्विड इनटू जी। तो देखो ये लॉस का ही तो हुआ ना, हमने अभी Sir, डिस्कस किया था। it is like the liquid wants to try and keep the object afloat, but the object also wants to go down. Objects wants to immerse, so its weight wants to pull it down, but the liquid wants to apply a force upward. So buoyancy is v immersed. So buoyancy के फॉर्मूला थोड़ा सा आपको याद रखना है। buoyancy force totally depends upon immersed part. ये immersed कितना है? Sir, but actually, if we see, then even the gas applies some buoyancy force. Yeah, every liquid will apply the buoyancy force because it will has a density now. So even the gases has some density. So if you drop something in the gas also, gas will apply the buoyancy. Sir, but it is extremely less Yeah. compared to liquid. हाँ, compared to liquid, the buoyancy in that those are very less. तो buoyancy basically creates the loss. So क्या हो जाएगा? Loss in weight. Loss in weight is the buoyancy. buoyant force जितना लॉस होता है, क्योंकि लॉस ऑफ वेट का भी फॉर्मूला क्या आता है? v रो लिक्विड इनटू जी। याद है? v इमर्ज्ड। पीछे अभी हमने डिस्कस किया था, यही फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था इमर्ज्ड का। Yes. तो दैट इज इक्वल टू लॉस इन वेट। तो बेसिकली लॉस कौन कराता है? buoyant फोर्स लॉस कराता है। वेट नीचे लेके जाता है, buoyant फोर्स अपोज करता है, और वो अपरेंट वेट हमारा बच जाता है। सो डब्ल्यू अपरेंट, अपरेंट मतलब कितना फील होगा, हो जाएगा डब्ल्यू एक्चुअल माइनस लॉस। लॉस इज अवर buoyant फोर्स। तो ये कॉज है जिसके वजह से, इस buoyant फोर्स के वजह से ही वहां पर हमें मिल रहा है। अब ये बताओ कॉज ऑफ buoyant फोर्स क्या है? buoyant फोर्स क्यों लगता है? तो आपने एक बात देखी, मैंने बताया लिक्विड में, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ये नहीं रेक्टेंगुलर ले लेते हैं, बहुत ही अच्छा समझ में आएगा, और ये लिक्विड पे डिप है। अब देखो कॉज ऑफ buoyant फोर्स देखना क्या है? व्हाट कॉजेज इट टू मूव अपवर्ड? आपको ये याद है मैंने बताया था कि लिक्विड अप्लाई फोर्स इन ऑल डायरेक्शंस। Yes. तो ये लिक्विड इस बॉक्स पे कहाँ कहाँ फोर्स लगा रहा होगा? डन। ऐसे फोर्स लगा रहा होगा। अच्छा, अब सारे फोर्सेस को देखते हैं। क्या सारे फोर्सेस पे प्रेशर सेम होगा क्या? जो रेड वाला वो तो सेम होगा। इस हाँ. एक बिल्कुल कैंसिल आउट कर देंगे। सो ये जो रेड है, ये दीज विल कैंसिल आउट। कैंसिल आउट। बट ब्लैक और ब्लू वाले का क्या होगा? ये जो ब्लैक है, जो ज्यादा है वो इस पे प्रेशर dominate ज्यादा है या करेगा. कम है? मे बी ज्यादा है. मे बी क्या, हाइट से नहीं पता चलता? किस हाँ, पे ज्यादा है प्रेशर सर. ज्यादा होगा? हाइट For हाइट that, ज्यादा है। सो प्रेशर एट बी इज मोर देन प्रेशर एट ए। तो इसका मतलब किसका फोर्स डोमिनेट करेगा? फोर्स ऑफ बी विल बी हायर देन फोर्स ऑफ ए। A. तो नेट फोर्स किस तरफ हो जाएगा? फोर्स ऑफ बी माइनस फोर्स ऑफ A. ए। और इनको पी क्यों ले लेते हैं? क्योंकि बी से आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, buoyant फोर्स मत समझ लेना इस बी का मतलब। हाँ. सो क्यू पे प्रेशर ज्यादा होगा पी से। अच्छा, पी से पी समझ लोगे, आर एस ले लेते हैं, ठीक है? तो ये पॉइंट आर है, ये पॉइंट एस है। Yes. फोर्स एट आर सरफेस और एस सरफेस इज
उल्टा लिख दिया हमने, एस आर, फोर्स एट एस सरफेस विल बी ग्रेटर देन आर, तो इसका मतलब नेट फोर्स विल बी फोर्स एट एस माइनस फोर्स एट आर, एंड दिस फोर्स गिव्स यू द buoyant force. So this is the reason of buoyant force. What? The pressure difference is the actual cause for buoyant force. समझ आया सबको? So the pressure difference in two surface R and S causes a force difference that causes a buoyant force. Clear? Yes, sir. Okay. So मुझे लगता है buoyant force आप सबको समझ में आ गया है. Buoyant force is nothing but the loss it causes. और वो सीधा किस पे डिपेंड करता है? लिक्विड पे. अगर पूरा हमने डिप करके रखा है तो इमर्स वॉल्यूम तो पूरा ही हो जाएगा, सिर्फ मेन क्या होगा? लिक्विड पे. तो द कॉज यहाँ पे लिख देते हैं, द कॉज ऑफ फॉर द रीजन फॉर buoyant force is the pressure difference. ओके, तो ये सिचुएशन हुई. अब हम एग्जाम्पल पे बात करते हैं. ठीक है, आज मैं एग्जाम्पल कुछ कराऊंगा तो आप लोग को बहुत अच्छे से धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि वो सारे क्वेश्चंस का पर्पस क्या है और कैसे कैसे हमें देखना है. डन. देखें, एग्जाम्पल वाइज मैं देखूंगा, आप सब फॉलो करेंगे. सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ relative density, an object of relative density 4 is an object of mass, let's say 600 grams, and relative density 4 is immersed into the liquid or into the water, then find loss in its weight. क्लियर? तो अब देखिए कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को. क्वेश्चन सबको समझ आया क्या? Yes, sir. 600 ग्राम का मास है, इसकी रिलेटिव डेंसिटी 4 है, वाटर पे इमर्स किया तो इसका वेट कितना हो जाने वाला है वो हमें कैलकुलेट करना है. तो सबसे बहुत ही सिंपलेस्ट वे है कि जब भी फुल अगर कर दिया है, फुल्ली इमर्स्ड है, पहली लाइन समझना है क्या है ये, फुली इमर्स्ड है. फुली इमर्स्ड में क्या इजी चीज है, अगर फुली इमर्स्ड है तो हमें टेंशन लेना ही नहीं, वॉल्यूम तो कैंसिल आउट हो जाएगा. क्या? एक्चुअल वेट एंड लॉस किससे रिलेटेड होंगे? दोनों की डेंसिटी से. तो क्या हो जाएगी? एक्चुअल लॉस, एक्चुअल वेट किस पे डिपेंड करेगा? ऑब्जेक्ट पे. और लॉस किस पे डिपेंड करेगा? लिक्विड पे. Liquid. और इसी को बेटा क्या बताया गया है? ये क्या चीज है? रिलेटिव डेंसिटी है. तो So वो it is 4 हो nothing but जाएगा. रिलेटिव डेंसिटी. एग्जैक्टली. और वो क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 4 गिवन है. तो इसका मतलब W लॉस कितना हो जाएगा? W एक्चुअल बाई 4. क्लियर? तो कितना हो गया इसका मतलब? 600 बाय 4. समझ आया सबको? 150 ग्राम. सो ये भी पूछ सकता है व्हाट इज इट्स न्यू वेट. सो इट्स न्यू वेट और न्यू वेट को दूसरे नेम क्या बोलते हैं? एपरेंट वेट. एपरेंट वेट कितना हो जाएगा? एपरेंट वेट इसका बहुत ही कॉमन सेंस है. W एपरेंट कितना फील हो जाएगा? था वो 600, लॉस कितना हो गया? 150. कितना बचा? 450 ग्राम का. 450. 450 ग्राम का फील होगा. समझ आया क्या? कुछ फील आया कि क्या एग्जैक्टली चल रहा है आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे? Yes, sir. Yes, sir. गुड. तो मुझे लगता है फुली इमर्स्ड में आपको उतनी ज़्यादा टेंशन तो नहीं होनी चाहिए. मैं एक और एग्जांपल देता हूँ.
एक्सपेक्ट करते हैं आप लोग से, देखें आप लोग कर पाते हैं कि नहीं। आप लोग को ट्राई करना है, आंसर किसी को बोलना नहीं है, सॉल्व करके रखो, मैं फिर पूछूंगा। ओके, ये भी फुली मर्ज पे है। फुल इमेज पे पहले हम फुल इमेज डिस्कस करेंगे बिकॉज वो इजी है, ठीक है। Okay, we'll try. I'll ask after a minute. Take a time 1 minute and solve. So, Yeah, so, yeah. so actual weight means apparent or new weight, no? Actual weight means, can't you read the question? A box of a specific Yes, gas yes, weighs sir, got it. this much inside the liquid. Yeah. So it's in the question. Yeah. So shall we answer in chat box? Yeah, yeah, you can. If you have solved, you can answer. Answer in the chat box. Yeah. Let's see. Okay, let's see it then. देखें, what is the actual formula we know? That its actual weight and loss कितना होता है ये? ऑब्जेक्ट ओवर लिक्विड, और वो क्या गिवन है हमें? रिलेटिव डेंसिटी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में हमें क्या चीज गिवन है? क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? Sir, it will be the apparent weight. Na? Yeah, it is apparent weight, so we cannot use in place of loss. So इसका मतलब हमें इसे लिखना पड़ेगा एक्चुअल, और लॉस को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं हम? लॉस को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? हम लिख सकते हैं एक्चुअल माइनस एपरेंट, माइनस एपरेंट। समझ आया सबको? ये क्या हो जाएगा? इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी, और हमें पता है 500 ग्राम इज डब्ल्यू एपरेंट, 500 ग्राम इज एपरेंट वेट बिकॉज दैट इज इनसाइड द लिक्विड, तो वो वेट एपरेंट है। और लेट्स से एक्चुअल वेट है कुछ m, लेट्स एज्यूम दैट एक्चुअल वेट इज m, सर और एक्चुअली वो सॉल्व कर देते कैंसिल आउट हो जाएगा ना सर? या लेट्स सी, सॉल्व कर देते हैं। सिंपल सॉल्विंग, m over m minus how much? 500 is equal to relative density is how much? It is 3. So let's cross multiply it then. So m is equal to, ये हो जाएगा 3m minus 500 into 3 कितना हो जाएगा? 1500. 1500. So now m इस तरफ लेके जाएंगे, 1500 को इस तरफ लेके आएंगे, 1500 is equal to 3m minus m. So how much will be there? 2m is equal to 1500. So then m will be 750 gram. Clear? Its actual mass is how much? 750 gram.
ये सॉल्विंग में कोई दिक्कत हुई या नहीं बताओ? सिर्फ हमें कौन सा फॉर्मूला याद रखना पड़ा? ये वाला। किसी को कोई डाउट बताओ, कोई टेंशन? हमें सिर्फ ये फॉर्मूले से काम बन गया। अच्छा, याद है मैंने एक दूसरा फॉर्मूला बताया था आपको कि अगर आपको W एक्चुअल और एपरेंट में चाहिए, याद है? W एपरेंट और W एक्चुअल ऊपर बताया था, तो आप Yes, डायरेक्ट sir. कर सकते हैं 1 minus 1 1 by minus 1 upon RD. relative density. So how much it will be? 1 से subtract करते हैं, it will be 2 by 3. 3. Clear? So how much will be W apparent then? Sorry, W apparent पता है, W actual हमें चाहिए. So W actual कितना हो जाएगा? 3 multiply होगा, 2 divide में होगा. So W apparent divided by 2 into 3. So how much it was? 500 divided by 2. 250 into 3. How much it will be? 750. Clear? So we can use this also, not a problem. समझ आया? बट आई प्रेफर कि आपको सॉल्विंग आना चाहिए. आप बहुत नंबर ऑफ फॉर्मूलेज मत लर्न करो, एक फार्मूला भी लर्न किए तो काम बन जाता है. क्लियर? Yes. ओके. So there will be no difference like actual weight and actual mass. No, actually what I am saying it, the mass, okay? I am saying weight and mass, both the things as the same. I am considering they are measured from a weighing machine, okay? So that is just a straight one, nothing else. Mass weight different होते हैं, but I am just using them as the same part. कोई टेंशन किसी को पता है? ये पॉइंट पक्का समझ आया? हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला? Yes, sir. ओके, लेट्स सी. अभी मैं आपको बताता हूँ कि फुल इमर्स का तो समझ में आ गया ना? फुल इमर्स में कोई डाउट तो नहीं रहेगा किसी को? No. डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे यूज करना है ये मैं कर लेता हूँ. यहाँ पे मुझे W एक्चुअल चाहिए था, सो यहाँ पे एक्चुअल कितना हो गया था? 3/2 इंटू W एपरेंट. ये तो फॉर्मूले से आप कर लेंगे. हम एक एग्जांपल कर लेते हैं पार्शियल इमर्स्ड का कैसे होगा. सो लेट्स सी. अ wooden box of density let's say 800 is 800. ये डेंसिटी क्या है? kg per meter cube. is floating in water. Find how much of its volume is not immersed, is not inside the liquid. अच्छा, दो चीजें हैं. ये भी पूछ सकते हैं हाउ मच वॉल्यूम इज इनसाइड द लिक्विड. सपोज 40% आउटसाइड है, तो मतलब इनसाइड कितना है? 60%. तो ये इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी ना आपको? मैंने पूछा है कि इनसाइड कितना है, सपोज क्वेश्चन में पूछा कि आउटसाइड कितना है, तो भी आप कर लेंगे ना अपोजिट जस्ट. Yes, sir. अब देखो इस वुडन बॉक्स को कैसे करेंगे. अभी ये फुली इमर्स्ड का क्वेश्चन है, पार्शियल का है? Partial. पार्शियल का है. तो इसका Partial, मतलब it's floating. हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें ये चीजें थोड़ी सी ध्यान देनी पड़ेंगी कि जो डिप और वो है उसका फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि बॉइंट फोर्स का फॉर्मूला या फिर कितना होता है लॉस का फॉर्मूला. लॉस का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इमर्स्ड कितना है इनटू रो लिक्विड इनटू जी. क्लियर? और टोटल वेट का फॉर्मूला क्या होता है? वी टोटल इनटू रो लिक्विड इनटू जी. ठीक. तो हमें उनकी डेंसिटी पता है, तो एक्चुअली उनके डेंसिटी के अकॉर्डिंग ही वो वॉल्यूम फ्लोट करते हैं और इनसाइड रहते हैं. किनके अकॉर्डिंग? अपने डेंसिटी के अकॉर्डिंग. तो अच्छा बताओ, उसका जो वेट है 800, वो उसे डिप कराने का ट्राई करेगा? Yes. वेट का 1000 उसे ऊपर लाने का ट्राई करेगा. Yes. तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ये क्या ट्राई करेगी? इमर्स कराने का ट्राई करेगी. और जबकि डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या ट्राई कराएगी?
buoyant ट्राई कराएगी, अपवर्ड मतलब वो लिक्विड से बाहर निकालने का ट्राई करेगी। तो इन दोनों से ही हम बता सकते हैं ना कि कितना वॉल्यूम बाहर रहेगा, कितना वॉल्यूम इनसाइड रहेगा, ये इन दोनों के रेशियो पर ही डिपेंड करेगा ना। यस सर। ओके, तो मैं स्टेटमेंट ये यूज कर सकता हूँ कि अगर वो फ्लोट कर रहा है, अगर वो फ्लोट कर रहा है तो क्या सिचुएशन होनी चाहिए फॉर केस ऑफ फ्लोटिंग, जैसे मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था फॉर केस ऑफ फुली इमर्स्ड। फुली इमर्स्ड के लिए हमने क्या डिस्कस किया है कि ये रेशियो हमें पता होता है फुली इमर्स्ड के लिए। अगर मैं पार्शियली इमर्स्ड के लिए बात करूं, व्हेन फुली इमर्स्ड के लिए हमें ये सारे फॉर्मूला है, यहाँ पर ही मैं ऐड करता हूँ फॉर पार्शियली इमर्स्ड, फॉर पार्शियली इमर्स्ड। पार्शियली इमर्स्ड का मतलब क्या हो रहा है, वो फ्लोटिंग। तो फ्लोटिंग मतलब उसका वेट तो उसे नीचे गिराने का ट्राई करेगा, और बचाएगा कौन उसे, इसका मतलब ऊपर कौन फोर्स पुल कर रहा है, बुआयंट फोर्स। तो इसका मतलब अगर ऐसा कभी होगा तो हम लिखेंगे क्या, दैट जो नीचे अपवर्ड फोर्स है, एफ अप इज इक्वल टू एफ डाउन। क्लियर, अप में कौन लग रहा है, बुआयंट फोर्स, एफ बुआयंट, और डाउन में कौन लग रहा है, उसका खुद का mg। तो बुआयंट फोर्स किस पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम इनसाइड। यस, यहाँ पर मैंने बात की ये वॉल्यूम, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड द और ग्रेविटी एक्सेलरेशन। ये यहाँ से फ्लोटिंग के लिए पूरा रिलेशन आ जाता है। देन बुआयंट फोर्स होगा वॉल्यूम इमर्स्ड इनटू लिक्विड इनटू जी इज इक्वल टू, ये क्या होगा, वॉल्यूम टोटल इनटू ऑब्जेक्ट इनटू जी। तो देखो यहाँ से क्या रिलेशन आ जाता है इमर्स्ड के लिए कि, सर या सर इसीलिए ऐसा होता है कि अगर स्विमिंग पूल में हमने एक बहुत हेवी और बड़ी शिप लाके रख दी तो फिर वो सिंक हो जाएगी, पर अगर वो हमने सी में डाल दी तो वो सिंक बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि वॉल्यूम बहुत बड़ा है। हाँ, तो इमर्स्ड वॉल्यूम भी उसका बहुत ज़्यादा हो जाता है, हाँ। ठीक है, एज कम्पेयर टू इट्स ओन वेट। तो वो भी Yes. एक अच्छी सिचुएशन हो जाती है यहाँ पर। तो ये हम हमेशा यूज कर सकते हैं क्या, इमर्स्ड वॉल्यूम मतलब लिक्विड की डेंसिटी इनटू टोटल वॉल्यूम इनटू ऑब्जेक्ट की डेंसिटी। ऑब्जेक्ट की इस क्वेश्चन डेंसिटी। में मैं यही यूज करने वाला हूँ। देखें इस क्वेश्चन में मैं क्या लिखने वाला हूँ, दैट वेट विल बैलेंस ऑफ अप इज इक्वल टू एफ डाउन, और अप में कौन लगेगा, बुआयंट, और डाउन में कौन लगेगा, वेट। और फॉर्मूला क्या होगा, बुआयंट का इमर्स्ड इनटू लिक्विड इनटू जी इज इक्वल टू, वेट में कौन लगेगा, वी टोटल इनटू ऑब्जेक्ट इनटू जी। अब बताओ हमें वॉल्यूम इमर्ज चाहिए, इनटू लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, वाटर दिया है मतलब 1000 है, ओके, जी तो कैंसिल आउट ही हो गया, इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम हमें नहीं पता, वी टोटल मान लेते हैं, इनटू डेंसिटी कितनी है ऑब्जेक्ट की, 800। 800. इससे क्या पता चल रहा है कि वॉल्यूम इमर्स्ड इज 0.8 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम टोटल। मतलब कितना होगा इनसाइड, 80% इनसाइड है, और आउटसाइड कितना होगा, वॉल्यूम इनसाइड 0.8 टाइम्स है ना, तो इसका मतलब कितना होगा, 80% इनसाइड होगा और आउटसाइड कितना होगा, 20. 20। ये लाइन समझ में आई है कि इमर्स्ड के लिए हमें क्या यूज करनी है, ये लाइन यूज करनी है। डन। यस सर। दो चीजें हमारे पास है, दो बड़े फॉर्मूले हैं पूरे इस आर्किमिडीज प्रिंसिपल और बाइंड फोर्स को लेके। क्या है वो दो फॉर्मूले, इफ फ्लोटिंग ओके, सो इफ फ्लोटिंग क्या यूज करते हैं, वॉल्यूम इमर्स्ड इनटू लिक्विड की डेंसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम टोटल इनटू ऑब्जेक्ट की डेंसिटी। क्लियर। और अगर Yes, फुली sir. इमर्स्ड है, फुली इमर्स्ड है तो वेट लॉस का क्वेश्चन पूछेगा। वेट लॉस का क्वेश्चन क्या बन जाएगा,
वेट लॉस का एक्चुअल और लॉस, एक्चुअल डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पे, लॉस डिपेंड करता है लिक्विड पे। तो ये दो मेगा पॉइंट्स है हमारे पास, याद रहेंगे हमेशा। Yes, sir. सारे क्वेश्चन यही दो पॉइंट से हो जाएंगे। ओके चलेगा। प्रेशर वाला पार्ट हमारा यहाँ से कंप्लीट होता है, ये चैप्टर प्रेशर वाला टॉपिक। नेक्स्ट उसमें रहेगा तो हम एक एग्जांपल प्रैक्टिस और कर लेंगे। ओके Yes, sir. Yes, Sir, sir. इसके बाद कौन सा चैप्टर है मतलब? इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है वर्क एनर्जी। हाँ ओके Sure. या यस सर, और ये बहुत वर्क इसके के ऊपर बहुत बाद क्वेश्चन आते हैं सर। या व्हाट वर्क के बाद कौन सा है मतलब? ओके डोंट वरी, यू विल गेट टू नो एज वी गो ऑन। ओके वर्क के बाद वी स्टडी हीट। Yes. Okay. Okay then, just revise this topic. This was important and tough. Actually tough रहता है why? Because there are a lot of formulae, but you see all of the formulas are interlinked. Only two major formulas are there. When emerged, मैं फिर से repeat करता हूँ, when emerged we use this part, actual over loss weight, actual object पे loss liquid पे, और दूसरा formula when it is not emerged we use this line. Okay. यस सर। Yeah. Yes, sir. Okay then. I think that's enough for today. Okay. यस Yeah. Bye bye everyone then. बाय सर, Yes, sir. थैंक यू Thank you. सर, हैव अ नाइस गुड You नाइट। too. So You this year, are we going to learn dynamics? dynamics. Already we have learned na dynamics means what? It is related to force. Yes, sir. Like in our school, there are like separate chapters, kinematics and then dynamics. No. For ninth we split it. We make kinematics separate and dynamics different. For eighth the name is what? Motion and force. Clear? For ninth the motion becomes kinematics and force becomes dynamics. Okay? Nothing Yes, changes. sir. The things you have studied is force only. Sir, in school we have like kinematics one chapter and dynamics one chapter. That's what I said. That is for class 9th, not for the 8th. If you open your NCERT, you will see what is the name. Yes. Okay, NCERT uses the term motion, and for this it uses the force. For class 9th, it uses the term kinematics. Okay, I think in at the beginning of lectures also I cleared it thoroughly. What is the हाँ difference? यस सर। How we Yes, sir. okay, okay then, no problem. Okay, यस सर, yeah, bye bye everyone then. Thank you, sir. Yeah, थैंक यू। bye bye, bye bye.